Narayan. In this video, I have taken up a conversation between Sri Rama and Rishi Vishwamitra from Yoga Vasishtha Maharamayan, and this event occurs when Rishi Vishwamitra goes to Ayodhya to ask of Sri Rama from King Dashrath. So when Sri Ram is called to the assembly hall, he comes there and he expresses his own heart in full. So he expresses the futility of worldly endeavors, the futility of worldly affairs, the futility of all the objects of enjoyments, even of woman, and futility of life itself. So he narrates this futility in beautiful poetic verses at length, at elaborate length. And then listening to this, Rishi Vishwamitra tells Sri Rama that your mind is similar to the mind of Suka, who was the son of Ved Vyas, and he also had arrived at this perfected knowledge, perfect reasoning, supreme state, supreme knowledge by his own discriminative knowledge, which you also have arrived at. But he was uncertain of this knowledge, so he wanted some validation from the scriptures, from the essence of the scripture. So there you are, and Sukadev was also similar to you. And after having got validation from the scriptures, Sukadev found rest in that supreme state of Brahma, the Absolute. And then Sri Rama puts up a question to Rishi Vishwamitra that please tell me the story of Suka. Who was the Suka, and how did he arrive at this knowledge, and how was he stationed? He was fixated in that supreme knowledge of Brahma, the Absolute. Please tell me this. So this is the story, and then Rishi Vishwamitra goes on to tell that how Sukadev inquired the same from his father Vyasa, and Vyasa equipped him with the knowledge of Brahma, but then he said that I already know this. So then Vyasa sends him to Janak, the king of Videha. Then Janak also, after testing him, he also gives him the same answer. And then Sukadev is assured that this is the essence of the scriptures as well. What is there in my mind, what I have acquired through my own discriminative knowledge, is the same which is the essence of the scriptures. So now there is no doubt that has remained in my mind. And then he goes on to the Mount Meru and he practices meditation. He meditates for about 10,000 years, unalterable meditation, not moving. He just stood there like a lamppost and meditated for 10,000 years, and he got rid of his mortal coil and attained, he got merged into the Supreme. This is the story. ये वीडियो के लिए जो मैंने संवाद लिया है बहुत ही सुंदर संवाद है, श्री राम और ऋषि विश्वामित्र के बीच का है, और ये योग वशिष्ठ महारामायण के संवाद में आता है। और ये घटना तब घटती है जब ऋषि विश्वामित्र अयोध्या जाते हैं श्री राम को मांगने के लिए दशरथ राजा से, और जब दशरथ राजा उनके दासों को बोलते हैं कि जाओ आप राम को लेके आओ, मेरे पुत्र को लेके आओ, तो जो उनके दास होते हैं वो वहां पर जाते हैं और फिर निराश होकर आ जाते हैं। वह कहते हैं कि दास वर्णन कर रहे हैं दशरथ राजा को और सभी को, जहाँ पर वो जो महल है वहां पर, तो वो कह रहे हैं कि कितने दिनों से हम देख रहे हैं कि श्री राम जो है उनको किसी भौतिक सुख में, भौतिक वस्तु में कोई रुचि ही नहीं रही है। वह भोजन भी कम करते हैं, बहुत ही कम अपने भाइयों से मिलते हैं, अपने मित्रों से कोई नहीं मिलता है, यहाँ तक कि उनको स्त्री को देख के भी कोई आकर्षण नहीं आता है। उनको ऐसा लगता है कि ये जीवन ही व्यर्थ है। उनको कुछ भी हम कहते हैं तो वो यही कहते हैं कि ये जीवन ही व्यर्थ है, जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, इससे ऊपर उठना चाहिए। तो ऐसे ही एक दो वाक्य कहते रहते हैं और आत्मचिंतन में ही अकेले अकेले बैठे रहते हैं। तो यही इनका हाल है। तो फिर दशरथ राजा फिर से उनको भेजता है कि उनको कहिए कि ऋषि विश्वामित्र आए हैं उनसे मिलने। तो ऐसा करके वह जाके फिर बुलाते हैं और फिर श्री राम आते हैं राज दरबार में आते हैं और फिर उनको पूछते हैं दशरथ राजा कि आपकी मन की व्यथा क्या है, आप मुझे बताइए। और फिर सुंदर रूप से श्री राम अपने मन की व्यथा, अपने हृदय के विचार प्रस्तुत करते हैं सुंदर सुंदर कविता के रूप में। एक बहुत ही लंबा वर्णन है यहाँ पर, और वह पूरे विश्व वैराग
जिसको चाहिए अगर वो ये पढ़ ले तो पढ़ के ही वैराग आ जाए। उतना सुंदर वर्णन है कि ये जीवन ही व्यर्थ है, मनुष्य जीवन व्यर्थ है। इसके बाद जो ये सृष्टि की उत्पत्ति है, इसका जो मूल कारण है, वो ही वहाँ तक उनको पहुँचने का उत्सुकता होती है उनको। और ये सभी जो यौवन आता है, यौवन आकर चला जाता है, फिर गृहस्थ आता है, गृहस्थ में हम सब सुखों को भोगते हैं, सुख सुविधा हमारे पास आती है, हम स्त्री को भोगते हैं, हम हमारे संतान को साथ में जीवन जी के आनंद प्राप्त करते हैं। उसके बाद फिर धीरे-धीरे वृद्धावस्था आती है और फिर लोग मरते हैं, जीते हैं, फिर से जन्म लेते हैं, फिर से मरते हैं, फिर से जन्म लेते हैं। तो ये पूरा सुंदर वर्णन श्री राम भगवान करते हैं कि भाग्य पर चर्चा करते हैं, कर्म पर चर्चा करते हैं, स्त्री की सौंदर्य जो क्षणभंगुर है उस पर चर्चा करते हैं, जो भौतिक सुखों के जो साधन हैं वो भी क्षणभंगुर है उस पर चर्चा करते हैं। तो संसार की निरर्थकता का बोध श्री राम को हो गया होता है और उनका जो पूरा वर्णन है, बहुत ही लंबा वर्णन है, उसका सार ही यही है कि ये जीवन ही व्यर्थ है। ये यहाँ पर एक ही चीज़ देखी जाती है कि लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये ऐसा कैसा जीवन है? सब अनित्य ही है। तो वह एक नित्य तत्व है, उसके चिंतन में ही लगे रहते हैं। उनको वो नित्य तत्व की खोज होती है और उनके प्रति ही वे बहुत ही आकृष्ट होते हैं। तो यही उनके वर्णन का सार है कि कुछ भी यहाँ पर नित्य नहीं है, सब चला जाता है। जो भी सुंदर है, जो भी प्रख्यात है, जो भी श्रेष्ठ है, वो भी चला जाता है। तो फिर जीवन की क्या उपयोगिता? तो ये सुंदर वर्णन करते हैं और फिर ऋषि विश्वामित्र श्री राम को कहते हैं कि आपका जो मन है वह सुखदेव के जैसे ही है। सुखदेव जो है वह वेद व्यास के पुत्र है। आप देखिए वेद व्यास से ही बैठे हैं, आपके पिता दशरथ राजा के समक्ष उनके पास ही बैठे हैं, सोने के सिंहासन में बैठे हैं। तो उन्हीं का पुत्र सुखदेव था और उनका भी मन आपके जैसे ही था कि उन्होंने भी अपने विवेक बुद्धि से, अपने तीव्र विवेक बुद्धि से मन के इतना चिंतन किया, आत्मचिंतन के द्वारा ही उनको परम तत्व प्राप्त हो गया। इतना चिंतन करते थे सुखदेव के उनको ये परम तत्व प्राप्त हो चुका था, मगर उनमें एक शंका थी कि क्या मैंने जो प्राप्त किया है वह सही है? ये एक शंका थी, तो उनका समाधान उनको शास्त्र के सार के माध्यम से उनको चाहिए था। तो फिर उनको जो सार मिला और फिर वह सदैव के लिए ब्रह्म में ही स्थित हो गए हैं। तो श्री राम उनको पूछते हैं कि कृपा करके मुझे बहुत ही उत्सुकता है कि मुझे ये सुखदेव की कथा मुझे सुनाइए। मुझे जानना है कि वह पहले कैसे अस्थिर थे ब्रह्म में और फिर उनकी जो पुष्टि हो गई, फिर वह स्थिर हो गए। तो ये मुझे जानना है, आप मुझे बताइए। और आपको अगर एक प्रश्न आए कि भई वेद व्यास वहाँ पर कैसे आ गए? रामायण रामायण काल में वेद व्यास कहाँ पर आ गए? तो इसका उत्तर ये है कि हमारे शास्त्र में जो है, शास्त्र जो है वह बहुत ही कम कथाएँ हैं। मैं आपको एक बता दूँ कि जो वेद व्यास ने जो कथाएँ लिखी है, पुराण लिखी है, वेद की शाखाएँ बनाई गई है, उपनिषद है, तो ये तो जो श्रेष्ठतम जो थे कथाएँ, वो ही उनको प्रदर्शित किया गया है हमारे सबके लिए। ऐसे बहुत सारी घटनाएँ घट गई है, कितने कल्प चले गए, कितने मनवंतर चले गए, कितने दिव्य युग भी चले गए हैं, कि हमको पता ही नहीं कि कितने-कितने अवतार आकर चले गए हैं। शास्त्रों में तो जो अवतार के वर्णन है वही हमको ज्ञात है, मगर भगवान के अवतार और बहुत सारे हुए हैं। और इसका दूसरा एक कारण है कि कल्प भेद है। जो भगवान राम का अवतार हुआ था ये मनवंतर में, वह 24वें चतुर्युग 24वें दिव्य युग में हुआ था और हम अभी बैठे हैं 28वें दिव्य युग या चतुर्युग में। तो उसके बाद तभी वेद व्यास का जन्म, ये ऋषि वशिष्ठ इसमें फिर पुष्टि करते हैं कि ये जो संसार है वह निरंतर चलता रहता है। वह अपना भी बोलते हैं कि मैंने भी कितने जन्म लिए हैं और ये मेरा कितवा जन्म है, इसके बाद भी मैं और कितने जन्म लेने वाला हूँ,
कितने वाल्मीकि आके चले गए हैं और कितने वाल्मीकि आने बाकी है। फिर वो कहते हैं कि जो वेद व्यास यहाँ पर बैठे हैं उनको और 8 बार जन्म लेना है और फिर वह परम तत्व में लीन हो गए, क्योंकि उनको एक दायित्व दिया गया है कि आपको वेद की, जब वेद ही विलुप्त हो जाए संसार से, जब भी पाखंड आ जाए, जैसे अभी आज आ गया है, तो ये वेद विलुप्त होने का ये आरंभ हो चुका है, मगर ये होगा नहीं। मगर ऐसा कहा जाता है कि पहले के युग में जब पूर्ण रूप से वेद विलुप्त हो गया था, जब कलयुग में इतनी विसंगति आ गई थी, विकृति आ गई थी, तो किसी को कुछ पता ही नहीं था कि कौन सा ज्ञान लेना है, कौन सा ज्ञान नहीं लेना है। लोग अज्ञान को ज्ञान मान के उनको ही श्रेष्ठ मानने लगे और फिर उनका ही पतन हो गया। तो ऐसे कितने कलयुग आके चले गए और फिर ये वेद व्यास फिर से जन्म लेते हैं और फिर शास्त्रों को अपने योग बल से फिर से प्राप्त करते हैं, लिखते हैं और फिर उसका विस्तार करते हैं हमारे लिए, हमारे कल्याण के हेतु ही। तो ये देखा जाना चाहिए कि कल्प भेद, मनवंतर भेद में कभी कभी वेद व्यास पहले जन्म ले लेते हैं, कभी बाद में लेते हैं, और कभी वशिष्ठ पहले आ जाते हैं, कभी बाद में आते हैं। तो ये सब इतने जन्म ले चुके हैं और ये सब संसार एक चक्र के भांति चलता ही रहता है। तो इसी से तो हमें छूटना है, नहीं तो हम चक्र में गोल घूमते ही रहेंगे। तो ये इसका उत्तर है। और फिर ये जो ऋषि विश्वामित्र है उनको कथा सुनाते हैं कि सुखदेव जो है वह वेद व्यास के पुत्र थे। इन्होंने जन्म लिया और फिर जन्म लेते ही ये बहुत ही चिंतन करने लगे। जैसे बड़े होते गए तो आत्मचिंतन में डूबे रहते थे और वह इस पूरे विश्व की निरर्थकता पर ही चिंतन करते थे कि ये विश्व क्या है। विश्व यही है कि हमारे मन की उत्पत्ति से ही विश्व उत्पन्न हुआ है। अगर हम देखा जाए कि आज से 40 साल पहले या 30 साल पहले मोबाइल्स थे ही नहीं, तो मोबाइल सबसे पहले कहाँ आए होंगे? अगर आप ये सोचे तो सबसे पहले किसी आविष्कार के मन में ही आया होगा मोबाइल। फिर उन्होंने मन के द्वारा फिर उसको क्रियान्वित करके वह बाहर एक पदार्थ के रूप में आ गया और फिर हम आज मोबाइल यूज करते हैं। वैसे ही लैपटॉप है, वैसे ही एक टेबल है, चेयर है, टीवी है, गाड़ी है। तो ये सब हम आप देखते रहे कि मन की उत्पत्ति से ये संसार चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा। तो मन से जो भी उत्पन्न होता है ये चलता ही रहता है। तो इसको हमें काटना है, हमें ये जो क्रम है इसको काटना है, नहीं तो हम चलते ही रहेंगे, हम अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे ही नहीं। और हमारा गंतव्य ही यही है कि हमको जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए जन्म मिला है। भागवत पुराण कहती है कि जीविका जो है वो जीवन के लिए है, जीवन है वो जीविका के लिए नहीं है। जो आज कलयुग में लोग जीविका को ही जीवन मानते हैं, यानी पैसा कमाना ही जीवन मानते हैं, लेकिन पैसा तो जीवन के लिए है, जीवन पैसे के लिए नहीं है। जीवन किस लिए है? जीवन धन जगदीश्वर को प्राप्त करने के लिए ही जीवन दिया गया है। तो इसी को हमें याद रख के जीवन का सदुपयोग करना है। अगर सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर उसका दुरुपयोग होगा और फिर हम निरंतर फिर से जन्म लेंगे, फिर दुख भोगेंगे और परम सुख, परम आनंद को हम प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। तो ये वेद सुखदेव चिंतन करते हैं और फिर अंत में ऐसी तीव्र विवेक बुद्धि उनकी होती है कि वह इस निष्कर्ष पर आ जाते हैं कि जो संसार है, ये सृष्टि है, वह केवल एक मिथ्या ही है। तो ये उसका निष्कर्ष आ गया होता है, क्योंकि ये इच्छाओं से बंधा हुआ है। इच्छाओं को न रखे तो ये संसार तो है ही नहीं, मेरे मन में भी नहीं है। तो ऐसा उन्होंने ये निष्कर्ष ला दिया और वही ऐसे निष्कर्ष में स्थित भी हो गए। मगर उनके मन में एक चिंतन था, एक शंका थी कि क्या मेरा जो निष्कर्ष है, ये कंक्लूजन है, ये सही है कि नहीं। मुझे शास्त्र के माध्यम से इसका एक पुष्टि चाहिए। और फिर उन्होंने अपने पिता वेद व्यास को पूछा कि हे परम पिता, ये मुझे बताइए कि ये सृष्टि की उत्पत्ति कभी हुई, ये कब से ये सब चल रहा है। लोग आते हैं, काम करते हैं, मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, आते हैं, काम करते हैं, मर जाते हैं। तो ये कब तक चल रहा है, कब से चल रहा है, कब तक चलेगा और इसका कारण क्या है? ये सृष्टि का विस्तार कितना है, ये बढ़ता जा रहा है, कहाँ तक है, कहाँ तक बढ़ेगा, ये सृष्टि कहाँ तक बढ़ेगी। तो ये सब उनको पूछते हैं और फिर वेद व्यास उनको
ब्रह्म ज्ञान भी देते हैं। उनके मन में जो, उनके हृदय में जो ब्रह्म ज्ञान होता है, वह सभी ज्ञान उनको दे देते हैं। और फिर सुखदेव कहते हैं कि ये तो मुझे पता है, आपने जो कहा है ये सभी ज्ञान मैंने अपने आत्मचिंतन से प्राप्त कर लिया है। तो ये तो आप, मुझे पता है वही आपने कहा है। तो वेद व्यास समझ गए कि कभी कभी क्या होता है कि अगर पुत्र बहुत ही ज्ञानी हो जाता है, अपने पिता को पूछता है और पिता वही ज्ञान कहते हैं जो सही में ज्ञान ही है, मगर फिर पुत्र उनको इतना इतना महत्व नहीं देता है। वह कदाचित कोई बाहर वाला कोई उसको वही ज्ञान सुंदर रूप से और समझाए तो फिर वह कदाचित मान ले। तो वेद व्यास को पता हो गया था कि अगर मैं उनको समझाऊंगा तो ये नहीं मानेंगे। तो फिर वो कहते हैं कि आपका जो ज्ञान का विस्तार है वही मेरा भी विस्तार है, मैं भी वहीं तक पहुंचा हूं, आप भी वहीं तक पहुंचे हैं, और यही तो सीमा है ज्ञान की के परम तत्व को प्राप्त कर लिया तो ज्ञान की सीमा समाप्त हो जाती है, अनंत हो जाता है। तो फिर आप एक काम करिए, आप विदेह राज्य में जनक राजा रहते हैं, वहां पर आप जाइए और वह आपको सरलता से ये सब समझा पाएंगे। तो सुखदेव फिर निकल पड़ते हैं और सुमेरु पर्वत के पास ही इनका पूरा राज्य बसा हुआ है, विदेह नगरी, जहाँ पर राज कर रहे हैं जनक राजा, राज ऋषि जनक राजा। और वहां पर जाते हैं, जो मुख्य जो द्वार होता है, गेट होता है, वहां पर उनको कहते हैं कि भाई राजा को कहिए मुझे मिलना है, सुखदेव मेरा नाम है, वेद व्यास का पुत्र हूँ। और फिर द्वारपाल वहां पर अंदर जाकर समाचार देते हैं। तो राजा को पता चल जाता है कि सुखदेव मुझसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं। तो ये होता है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का फल, कि आपको भूत भी पता है, वर्तमान तो पता ही है, भविष्य भी पता है, दूसरों के मन में क्या है वो भी आपको पता चल जाता है। जनक राजा भी ब्रह्म ज्ञानी थे और उन्होंने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, और इसीलिए वो द्वारपाल फिर वहां पर लौट आए और 7 दिनों तक कुछ उत्तर ही नहीं दिया जनक राजा ने। तो 7 दिनों तक फिर सुखदेव वहीं के वहीं खड़े रहे। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा कि मेरा अपमान हुआ है, मेरा सत्कार नहीं किया गया है। तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो केवल और केवल ब्रह्म में लीन थे, ब्रह्म का चिंतन करते रहते थे। तो उनको कुछ भूख प्यास कुछ असर ही नहीं हुई। तो फिर 7 दिनों बाद फिर जनक राजा ने उनको बताया, द्वारपाल को, कि आप उनको भीतर लेके आइए, जो बाहर का मेरे राज्य का जो प्रांगण है, वहां पर एक बड़ा वन है, वन में आप उनको बिठाइए। तो फिर द्वारपाल उनको आगे लेके आते हैं, वहीं पर बिठाते हैं। तो 7 दिनों तक फिर वहीं बैठे रहते हैं। 7 दिनों तक उनको कुछ पूछा नहीं जाता है, कोई सत्कार नहीं, कोई कुछ नहीं, भोजन प्यास कुछ नहीं। तो वो बैठे रहते हैं। तो ये जनक राजा भी देख रहे हैं कि क्या इनका मन का भाव है, हृदय का भाव कैसा है, मगर उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, सुखदेव ब्रह्म में ही लीन है। और फिर 7 दिन होने के बाद फिर जनक राजा फिर से उनको कहते हैं कि अब आप उनको भीतर के जो मेरे राजमहल के बाहर का ही जो छोटा सा महल है, वहां पर उनको लेके आइए। और फिर वहां पर उनको लेके आया जाता है और यहाँ पर फिर उनको स्वादिष्ट भोजन, व्यंजन, बहुत ही दिव्य भोजन उनको परोसा जाता है। बहुत ही सुंदर सुंदर सुगंधित इत्र जो होते हैं, परफ्यूम्स, वह उनको देते हैं। फूल बहुत ही देते हैं। तो इतना सुगंधित वातावरण किया जाता है। और फिर बहुत सारी गणिकाएं आती है, उनको परोसती है भोजन, उनके समीप रहती है, 7 दिनों तक वहीं उनकी सेवा में रहती है। बहुत ही सुंदर गणिकाएं होती है। और फिर भी सुखदेव का जो मन है वह ब्रह्म में स्थिर रहा है, ब्रह्म से हिला ही नहीं है। तो ये देखते हुए फिर टोटल 21 दिन हुए हैं। 21 दिन के बाद फिर जनक राजा उनको समीप बुलाते हैं अपने कक्ष में और फिर उनको कहते हैं कि आइए सुखदेव, आइए, आपने जो जन्म प्राप्त किया है आपके वर्ण में, तो जो वर्णाश्रित जो आपका धर्म है, कर्म है, वो सभी आपने, अपना कर्तव्य आपने पूरी तरह से निभा दिया है। आपकी हृदय की सारी इच्छाएं हैं वो भी पूरी हो चुकी है। तो आप अभी कौन सी इच्छा लेकर मेरे पास आए हैं? आपने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया है। तो सुखदेव फिर आते हैं और फिर उनको तुरंत ही प्रश्न पूछते हैं कि आप महाराज, आप ये मुझे बताइए कि ये सृष्टि की रचना कब हुई थी?
ये सृष्टि कैसे चल रही है, कब तक चलेगी, इसका विस्तार, ये सब क्या है। तो यही प्रश्न वेद व्यास को पूछा था, यही प्रश्न इन्होंने जनक राजा को पूछा, और जनक राजा ने भी वही उत्तर दिया जो भगवान वेद व्यास ने सुखदेव को दिया था। तो यही उत्तर उनको दिया गया है। और फिर सुखदेव कहते हैं कि ये तो मैंने सुना है, ये तो सबसे पहले मैंने अपने मन के द्वारा ही प्राप्त कर लिया था, और फिर मेरे पिताश्री से भी यही सुना है, और आपसे भी यही मैं सुन रहा हूं। तो कदाचित मुझे ये अभी पुष्टि मिल गई है कि शास्त्रों का सार भी यही है। मैं ये जान गया हूं कि ये जो संसार है वह इच्छाओं के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, और इच्छाओं के त्याग से ये संसार नष्ट हो जाता है हमारे मन में। अगर हमारी इच्छाएं ही नहीं है तो संसार हमारे मन में नष्ट हो गया है, हमारे लिए तो संसार न बराबर ही है। तो ये मैं जान गया हूं, और यही शास्त्रों का सार भी है। मगर कृपा करके मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्या ये संसार सत्य में है कि एक मिथ्या है, ये मुझे बताइए। तो जनक राजा उनको कहते हैं कि आप ये जान लीजिए कि एक परम तत्व है जिसको हम परमात्मा कहते हैं, एक वही है, बाकी कुछ है ही नहीं। आप यही मानिए, परम तत्व है, परमात्मा ही सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, वह सब जगह है, यही है और कुछ है ही नहीं। तो यही जानकर आप अपना जीवन व्यापन कर दीजिए, और आपने तो परम तत्व को प्राप्त कर ही लिया है। और मैं आपको बहुत ही मैं आपसे प्रसन्न हूं, क्योंकि आप इतने युवान हैं। आप यौवन में ही आपने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है जो कदाचित बहुत जन्मों में भी प्राप्त नहीं करते हैं। फिर जनक राजा ये कहते हैं कि वेद व्यास जो है वो मेरे गुरु है, आप उनके पुत्र हो, मगर हम दोनों से आप बहुत ही महान हो, क्योंकि आप में जो है वह संसार के प्रति इतना वैराग उत्पन्न हुआ है, संसार के भोग्य पदार्थ के प्रति इतना वैराग्य उत्पन्न हुआ है कि वो मुझ में और वेद व्यास में भी नहीं है इतना वैराग्य। तो आपका जो ज्ञान है वो परिपक्व है, वह पक गया है, जैसे एक आम, पका हुआ आम जो खाने में स्वादिष्ट लगता हो, ना कच्चा ना एकदम पक्का, मगर जो खाने योग्य जिसी दिन जिस समय हुआ हो, ऐसा आपका ज्ञान है, ऐसा परिपक्व ज्ञान आप में आ गया है। तो आप कृपा करके इसी को ही शास्त्रों का सार मानिए जो आपने प्राप्त कर लिया है, यही शास्त्रों का भी कहना है। तो आप तो बहुत ही महान है। तो सुखदेव फिर बहुत प्रसन्न होते हैं, और फिर वह शांत होकर फिर वहां पर बैठे रहते हैं, और फिर आज्ञा लेकर वह मेरु पर्वत की ओर चल पड़ते हैं। उनमें ना कोई शंका है अभी, ना कोई भय है, ना कोई दुख है, ना कोई सुख है, कुछ नहीं है। संसार के प्रति पूरा वैराग है। संसार केवल आंखों की दृष्टि से और इंद्रियों से उनको प्रतीत होता है। भूमि पर चलते हैं, पर्वत दिखता है, सागर दिखता है, नदी दिखती है, वन दिखता है, मगर केवल और केवल ब्रह्म में ही उनका चिंतन है। और वह मेरु पर्वत में एक गुफा में जाकर बैठ जाते हैं, और फिर ध्यान योग के द्वारा 10,000 वर्षों तक वहीं पर ऐसे जैसे एक खंभा खड़ा कर दिया है, वहीं पर रह रहा है। जैसे एक पर्वत है, वह सभी ऋतुओं को झेलता है और वहीं रहता है 10,000 वर्षों तक। तो वैसे ही सुखदेव भी 10,000 वर्षों तक वहीं पर ऐसे ही ध्यान योग में बैठे रहे, और अंत में 10,000 वर्षों के अंत में उनको ब्रह्म प्राप्ति हुई। और जैसे एक छोटी सी बूंद आप अगर सागर में डालिए और वह सागर में लीन हो जाती है, सागरमय हो जाती है, वैसे ही सुखदेव भी ब्रह्म में लीन हो गए 10,000 वर्षों के बाद। ये सुंदर कथा फिर ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम को बताई, और उनको भी कहा कि सुखदेव इस तरह से जनक राजा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उनके पिताश्री से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी के माध्यम से फिर वह ब्रह्म को प्राप्त किए थे। तो आपका भी यही है, आपने अपनी तीव्र विवेक बुद्धि से ब्रह्म को अपने मन में तो प्राप्त कर ही लिया है, मगर मैं अभी आग्रह करूंगा ऋषि वशिष्ठ से, जो आपके कुल गुरु है, जो स्वयं ब्रह्मदेव के पुत्र है, वही आपको ब्रह्म ज्ञान देंगे और संपूर्ण
आपके जो भी हृदय में शंकाएं हैं वह सभी शंकाओं का समाधान ये ऋषि ही करेंगे। और फिर आरंभ होता है योग वशिष्ठ महारामायण का महत्वपूर्ण बहुत ही लंबा संवाद, जो आप इंग्लिश ट्रांसलेशन में 3,500 पेज है। बहुत ही प्रश्न उत्तर होते हैं राम भगवान और ऋषि वशिष्ठ में, बहुत सारी कथाएं आती है और फिर तत्व ज्ञान इनको मिलता है। तो ये सुंदर इसका यही सार है कि हमें, हम जैसे जो सामान्य जन्म वाले हैं उनको, हम सभी को आत्मचिंतन का सहारा नहीं लेना है। आत्मचिंतन का सहारा केवल राम भगवान और सुखदेव ले सकते हैं, क्योंकि उनका जन्म ही बहुत ही दिव्य था। राम भगवान स्वयं नारायण के अवतार थे और स्वयं राजा दशरथ के पुत्र थे, जो बहुत ही कम नहीं थे वो भी। और सुखदेव जो थे वो भी भगवान वेद व्यास के पुत्र थे। भगवान वेद व्यास भी नारायण का अवतार है, तो उनके पुत्र है। तो एक दिव्य पुत्र के, दिव्य व्यक्ति के पुत्र बनना, तो उसमें सामान्य रूप से वैराग और ज्ञान तो पहले से ही परिपक्व होकर आ ही जाता है, जन्म से ही आ जाता है, क्योंकि उनके पिता का ऐसा तप होता है। तो हमारे लिए तो यही उचित है कि हमको एक समर्थ गुरु के चरण में जाना है और फिर हमको धर्म का और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है, और फिर हमें आत्मचिंतन करे। फिर हम धीरे धीरे हमारे जीवन में जो अनुभव होते हैं उनसे सीख कर हम ब्रह्म तक जा सकते हैं या ब्रह्म को पहचानने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए उचित है। तो ऐसी सुंदर कथाएं अगर आपको पसंद है तो ये आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मगर गोवर्धन मठ नाम की एक सुंदर चैनल है यूट्यूब पर, उसको अब अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज वहां पर आपको पूरे शास्त्रों का ज्ञान आपको मिलेगा। उनके मुख से केवल शास्त्र निकलते हैं, आपको डायरेक्ट नॉलेज आपको शास्त्र का मिलेगा, और आप अगर उसको क्रियान्वित करते हैं अपने जीवन में तो आपका अवश्य मंगल ही मंगल निश्चित है। शिव शंकर प्रलयंकर।